Yes. So our next topic is difference between traditional business and e-business. Here we'll compare traditional business with e-business on various basis of differences. First of all, we must be very clear about the meaning of traditional and e-business. ये हमने last lecture में भी हमने किया था, day before yesterday. ट्रेडिशनल बिजनेस कौन बता सकता है मेरे को? रेज हैंड प्लीज, रेज हैंड प्लीज. ट्रेडिशनल बिजनेस कौन बता सकता है? यस मिताली, व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस? Sir, in traditional business, the customer goes to the market and buys product. Yes. Means the transactions are happen physically, not on internet. Yes. When the customer he goes to the market and he purchases the goods by going to the market, that is traditional business. और कई बार सेलर भी घर पे आ जाए, वो भी हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस ही है. मीन्स when there is interaction, फेस टू फेस इंटरेक्शन, वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड परचेजर, वो जो है जो खुद जाके परचेज कर रहे हैं, ये सेलर हमारे घर पे आ रहा है, दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस. एंड ई बिजनेस हमने उस दिन भी डिस्कस किया था. इट इज द बिजनेस, who will tell? It is the business. 2 only, 3, 4. Jasmine. So it is the electronic business and it doesn't require any physical presence of the customer or of the seller. Yes, which is done electronically, है ना? Which is done electronically through the use of internet, and presence of customer or seller, physical presence is not required in such cases. Fine. तो डिफरेंस जो है वो हम इन दोनों का भी करेंगे. इसके 3 कॉलम्स आप प्रिपेयर कर लीजिए. फर्स्ट कॉलम इज बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड इज ट्रेडिशनल बिजनेस एंड थर्ड इज ई बिजनेस. देखिए फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग. मीनिंग जो हमने अभी डिस्कस किया, या हमने जो पिछले लेक्चर में डे बिफोर यस्टरडे भी डिस्कस, सेम मीनिंग की स्पेस छोड़िए इसको और आपने खुद लिखना है. ठीक है, लीव 2 to 3 लाइंस. सेकंड पॉइंट इज फिजिकल प्रेजेंस. फिजिकल प्रेजेंस. यस, पॉइंट्स आपने बनाने हैं बेटा खुद ये वाले, मैं सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ आपको. ये भी हमने वैसे अभी डिस्कस किया. कौन बताएगा? कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड. तान्या. In traditional business, physical presence of both the customer and the seller is required, whereas in e-business, no such physical presence is required. Physical presence is not required in case of e-business. Good. Next is technology. Technology. Then I mean to say use of technology. Which technology is used in traditional business and which technology is used in e-business? Yes, Kanav. Kanav Batra. Yes, anybody else? जिन्होंने पहले हैंड रेज किए थे वो कौन था? वो हैंड रेज करना. कनिका. यस. In traditional business, skilled or semi-skilled laborers can be, but in e-business, only skilled and who are good in technology persons are able to operate the business. Yes, Kanika, we are here discussing the point of technology actually, not labor employees, है ना?
वर्कर्स की बात नहीं हो रही है, वो अलग पॉइंट बनेगा एक। आप मेरे को, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी यहाँ पे। हम स्किल्ड वर्कर्स या अनस्किल्ड वर्कर्स की बात तब कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉइंट हो वर्कर्स का, स्किल ऑफ वर्कर्स का। वी हैव हेयर पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इफ आई एम क्लियर कनिका, Okay. टेक्नोलॉजी का पॉइंट Modern technology is required in Yes. e-business. Yes, traditional technology is used in traditional business and modern technology is used in e-business. The technology which is being used in the e-business is modern technology. ट्रेडिशनल बिजनेस में पुरानी टेक्नोलॉजी चल सकती है, कोई बिल काटना है पुराना, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो सकता है। पेमेंट जो है वो कैश भी लिए जा रहे हैं, चेक भी लिए जा रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पे पेमेंट सिस्टम कुछ और है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सिस्टम कुछ और है ई बिजनेस में। नेक्स्ट इज opportunity for interpersonal touch. Opportunity for interpersonal touch. Only 1, 2, ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। 3, यस केतन। Sir, in the traditional business, personal touch is there between customer and the seller, and there is no such personal touch between in e-business. बिल्कुल, there is no personal touch in case of e-business, whereas it is present in case of traditional business. हम उससे भी बात कर रहे थे, कई बारी हम कहीं शॉप से सामान लेने जाए ना, तो हम 3-4 शॉप्स छोड़ देते हैं रास्ते में, हम चौथी शॉप पे, 5वीं शॉप पे जाते हैं सामान लेने के लिए। बीच वाली 3-4 शॉप्स हमें याद भी नहीं रहती कि वो भी हैं, है ना, बिकॉज हमारे गुड रिलेशंस होते हैं कस्टमर्स के अपने शॉपकीपर के साथ, है ना। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल है, बट ई बिजनेस में तो कस्टमर को नहीं पता कि सप्लायर कौन है और सप्लायर को नहीं पता है कस्टमर कौन है, तो देयर इज नो सच केस ऑफ इंटरपर्सनल टच इन केस ऑफ ई बिजनेस। देन इज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। Cost of setting up. एक बिजनेस में ये हाई है, एक बिजनेस में ये लो है। यस इमानी। In traditional business, there is high cost because all the infrastructure is required and physical presence. But whereas in e-business, there is not so high cost. Yes, the cost of setting up is high in case of traditional business as compared to e-business, because सारे resources हमें e-business में चाहिए नहीं होते, है ना। Most of the e-business firms they act as mediocre middleman कह सकते हैं। एक जगह से परचेज करते हैं, दूसरी जगह पे सेल कर देते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ पीसी चाहिए है और एक अच्छी सी वेबसाइट चाहिए होती है। जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है वो इजी हो जाती है, कम हो जाती है। Next point is pre-sampling. Pre-sampling. Sample means sample check करना पहले, pre means पहले, है? एक बिजनेस में ये पॉसिबल है, दूसरे में ये नहीं है। हाँ जी प्रणव। The free sampling is possible in traditional business and it is not possible in e-business. Yes, traditional business में ये पॉसिबल है। We go to the shop, we check the products, we leave the product, we go to another shop, again we check the product, again we leave the product, है ना। Free sampling कर सकते हैं। Otherwise, if we don't leave the shop, suppose we purchase the goods, still we have an option of checking the free sampling the product. But in case of e-business, we can just check the photograph, picture of that the product. इसके अलावा कुछ नहीं होता हमारे पास। या फिर एनिमेशन हो सकती है जिसमें जो प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाना है वो बताया गया, बट फिजिकली प्रोडक्ट को चेक करना इज पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस ओनली। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इसका मीनिंग वगैरह किया हुआ है ये बिजनेस। मानिया, ई बिजनेस की ग्लोबल रीच है और ट्रेडिशनल बिजनेस की नहीं। ट्रेडिशनल में भी है, लेकिन ट्रेडिशनल में थोड़ी लिमिटेड सी है, ये कह सकते हैं। ये नहीं कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो करता है वो ग्लोबली बिजनेस नहीं कर सकता। देयर आर मेनी फर्म्स हु आर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन ट्रेडिशनल बेसिस
but still they have a global reach. But in case of e-business, the firms, the moment they enter into the business, e-business, it becomes global. क्योंकि बड़ी नेट पे हुई हैं, जहां मर्जी जो मर्जी उसको जो है वो खोल के उसका प्रोडक्ट है वो चेक कर सकता है. सो वी कैन से हम यस नो वाली बात नहीं यहाँ टोटली उसको आउट नहीं कर सकते ट्रेडिशनल बिजनेस को. हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिटेड रीच इज देयर, whereas more global reach is there in case of e-business. लिमिटेड कह सकते हैं बिकॉज ये नहीं है कि कोई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस हो और वो ग्लोबल ना कर पाए, ऐसा नहीं. ठीक. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट. गवर्नमेंट सपोर्ट रिसेंटली 1 2 ओनली. गवर्नमेंट किसी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, किसी कम कर रही है, ये पॉइंट. एनीबडी एल्स? स्टिल एनीबडी एल्स? ये सभी पहले आंसर दे चुके हैं. आई फील यस वासुदेव. ई बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ट्रेडिशनल बिजनेस को कम करती है सपोर्ट गवर्नमेंट. ट्रेडिशनल बिजनेस को कम सपोर्ट करती है, हम कम लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे कि बिल्कुल नहीं करती, कम करती है. whereas more support is there for e-business, more government support is there. कर रही है ना गवर्नमेंट आजकल, तो ई बैंकिंग को बड़ा कर रही है. मतलब कोई भी चीज ई वाली जो चीज है उसको ही गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है. आजकल तो टीचिंग भी ई हो रही है, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है. तो देयर आर चांसेस के शायद स्कूल कॉलेजेस खुल जाए, है ना. गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया है कि 21 सितंबर से आप स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को बुला सकते हो अगर बच्चों के डाउट है तो, और दैट टू फॉर क्लासेस 9 to 12. उसके लिए भी गाइडलाइंस इशू हो गई हैं. बट स्टिल गवर्नमेंट साथ में ये भी कह रही है कि मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टुवर्ड्स ऑनलाइन टीचिंग. मतलब जिस साइड भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है, चाहे वो टीचिंग की बात हो रही है, चाहे वो बिजनेस की बात हो रही है, चाहे वो बैंकिंग की बात हो रही है, हर साइड पे गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड को जो है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है. ठीक. नेक्स्ट इज स्टाफ. ये पहले अभी कनिका ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये वो वाला पॉइंट है. स्टाफ हमें कौन सा चाहिए होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में एनी टाइप ऑफ स्टाफ कैन बी देयर. इट मे बी स्किल्ड स्टाफ, इट मे बी अनस्किल्ड, इट मे बी सेमी स्किल्ड, है ना, जो रिक्वायरमेंट है. बट इन केस ऑफ ई बिजनेस ओनली स्किल्ड स्टाफ कैन बी देयर. सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं चाहिए होते, वहां पर उनका काम ही नहीं होता. ठीक है. जो टेक्नोलॉजी वाले पर्सन होते हैं ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज स्टाफ चाहिए कम होता है. स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस कम होती है इन केस ऑफ ई बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजैक्शन रिस्क. ट्रांजैक्शन रिस्क काशवी. So there is high risk in e-business due to no personal contact between the like purchaser and seller, whereas in traditional business there is less risk involved. बिल्कुल ठीक काशवी. Less risk in case of traditional business because the customer and supplier, both of them, they know each other, and suppose they don't know each other, so they are physically there while selling or purchasing the goods. But in case of e-business, chances of frauds are there from both sides. It may be from customer side, it may be seller side also. Fine. Then one more point is there, basis of control. Basis of control. ये जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? अगर मैं थोड़ा सा बताया ना तो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा. मैं थोड़ा रोक के चल रहा हूँ अपने आप को. कंट्रोल जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में है और ई बिजनेस शॉपकीपर के हाथ में. ट्रेडिशनल बिजनेस कंट्रोल किसके हाथ में है और ई बिजनेस का? मुस्कान. Traditional business is यस. the shopkeeper, whereas e-business is controlled by some company or some organization. और Some organization. by the customer. By the customer. हाँ, e-business is controlled by the customer, whereas traditional business is controlled by the shopkeeper, seller. Seller buyer की बात करते हैं.
ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कंट्रोल है वो सेलर के हाथ में है कि सेलर शॉप खोलेगा तो हम परचेज कर सकते हैं, है ना। शॉप ना खुली होगी तो हमारा इनिशिएटिव क्या करेगा, हम चीज लेने जाएंगे, अभी शॉप बंद होगी। ई बिजनेस में क्या है, शॉप बंद थोड़ी होनी है। द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ द परचेजर, बायर, कि जब मर्जी वो चाहे चीज जो है परचेज कर सकता है। कंट्रोल इज इन हिज हैंड। नेक्स्ट इज प्राइस। सर क्या? प्राइस कैसे, रेट इसमें कम होता है जनरली, इसमें ज्यादा होता है। जनरली बात कर रहा हूँ, डजंट मीन ये हमेशा ही ऐसे होगा, जनरली कर रहे हैं बात। 1 2 3 4 5 एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? जैस्मीन। Sir, in e-business, the price is high, and in the traditional business, the price is low. नहीं, कौन कौन एग्री करता है इससे? मान्या तो मैंने देख लिया ऐसे ना करती हूँ कि नहीं। मान्या क्या आंसर है इसका? ई बिजनेस का प्राइस कम होता है और जो ट्रेडिशनल उसमें हाई होता है। जनरली ऐसे होता है जैस्मीन, ई बिजनेस का जो प्राइस है वो कम होता है और जो इसका ट्रेडिशनल बिजनेस का है वो हाई होता है। रीजंस में भी वेरियस रीजन। एक तो ये रीजन है कि बीच में से मिडिल पार्टी जो निकल जाती है, उनका मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। हम अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो पहले मैन्युफैक्चरर, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। जबकि अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरर से बीच में एक सिर्फ वो ऐप, या वो भी कई बार इंट्रोड्यूसर खुद की होती है, और बाद में कंज्यूमर। पहले तो बीच के जो पर्सन है वो कम हो गए तो उनका मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, इसलिए जो चीज जो सस्ती पड़ती है कंज्यूमर को। सेकंड जो बात है वो ये है कि बिकॉज ज्यादा सपोर्ट जो है वो उसको मिल रही है, इसको ई बिजनेस को। और ई बिजनेस जो बिजनेसमैन है वो भी चाहता है कि हमारी जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो। सेलिंग इंक्रीज, आपको वो आदत डाल रहे हैं ई शॉपिंग की। हम यूज तो नहीं है ना, अभी हम कम है ना। नहीं, हमें जब भी कोई परचेज करना होता है सामान, हम पहले बाजार भागते हैं। ई बिजनेस हमारे माइंड में कम आता है, इतना नहीं आता। जब बाजार में हम घूम घूम के थक जाए, फिर याद आता है कि यार वहां से देखिए, वहां से चीज मिल जाए जो हमारी पसंद की, सपोज ना मिल रही हो तो, है ना। हमारी आदत नहीं है अभी ई शॉपिंग वाली। तो जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसमैन है, वो हमें आदत भी डाल रहा है। जब हम कंपेयर करते हैं, ये वाली चीज जो है बाहर बड़ी महंगी थी, यहाँ पे ये सस्ती मिल रही है उल्टा, और इतने अच्छे डिजाइन मिल रहे हैं, इतनी अच्छी बढ़िया चीज मिल रही है, और चीज घर पहुंच रही है। एंड वी फील आल्सो प्राउड कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी आ जाता है मन में। तो वो हमें जो है वो आदत डाल रहे हैं बिजनेसमैन जो है। इसलिए जो रेट कंपैरेटिवली ई बिजनेस में इजी रहता है, कम रहता है, मीन्स ट्रेडिशनल में वो रेट ज्यादा रहता है। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, अदरवाइज बहुत पॉइंट्स हो गए हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी, यस, ये भी बड़ा इजी पॉइंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है ये वाला। इसके पॉइंट सारे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के डिफरेंस के पॉइंट्स। कौन बताएगा? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? स्टिल एनीबडी? ये वही बस वो 10-12 बच्चे हैंडल करते हैं, उनमें से होते हैं। चलो वासुदेव। वासुदेव अपने आप को अनम्यूट रखा करो बेटा, पहले ही अनम्यूट रखा करो अपने आप को। ये भी सही लगता है कि आपको आवाज नहीं, फिर आप अपने अनम्यूट करते हो, फिर क्वेश्चन का आंसर करते हो। अदरवाइज तो रखो अपने आप को अनम्यूट। नहीं तो जिसने आंसर देना है वो तो अनम्यूट कर ले कम से कम। आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट कर नहीं रहे, उसका फायदा क्या? अपने आप को पहले ही अनम्यूट रखा करो। आपने हैंड रेज किया, साथ में अनम्यूट कर लिया है अपने आप को। अदरवाइज मैंने कई बार कहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप सारे लेक्चर में भी अगर आपको अपने आप को अनम्यूट रख लो, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तमन्ना ने हैंड रेज किया था पहले। यस तमन्ना? सर टाइम ऑफ डिलीवरी। ये तमन्ना की आवाज नहीं आ रही है, तमन्ना की आवाज इतनी भारी आवाज नहीं है, मेरे को पता है। यस तमन्ना? Sir, in traditional business, it takes less time for delivery of goods, Yes. and in e-business, it takes more time. Yes, e-business में it is time consuming process, and traditional business में it is quick.
सेम टाइम पे हम पैसे देते हैं, हमें सेम टाइम पे चीज जो है वो जनरली मिल जाती है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस. Yes, next topic is scope of e-commerce. Scope of e-commerce में हम डिस्कस करेंगे किस किस पार्टीज में ये जो बिजनेस है ये हो सकता है, कौन सी दो पार्टीज में बिजनेस हो सकता है. Here B means the businessman या business and C means the customer. B2B commerce, B2B means तो जब दोनों पार्टीज जो ऑनलाइन कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज कर रही हैं, बोथ आर बिजनेस एक्टिविटी, बोथ आर बिजनेस पार्टी, है ना. एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से गुड्स परचेज कर रहा है सो दैट फर्दर इट कैन बी सोल्ड. बोथ द पार्टीज आर बिजनेस, है ना. बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. सेकंड इज बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स. बिजनेस एक पार्टी बिजनेस है और एक पार्टी कस्टमर है. जैसे हम परचेज करते हैं, सपोज हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी हो, तो जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज अंडर B2C कॉमर्स, बिकॉज वो बिजनेसमैन है, हम कस्टमर्स हैं. ठीक है. अगर हम करते हैं बिजनेस टू बिजनेस वाले में, इसका मतलब ये कि हम आगे सेल कर रहे होते हैं. ठीक है. सपोज एक है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने आगे किसी को सेल करी, सेल टेलर, उसने आगे सेल करी हमें कंज्यूमर को. हेयर टेलर मीन वो पार्टी जो मैन्युफैक्चरर से ऑनलाइन सामान लेके हमें ऑनलाइन सामान Amazon की बात कर सकते हैं, स्नैपडील की बात कर सकते हैं, बिकॉज वो खुद नहीं बनाती है कंपनीज, वो सिर्फ मिडिल पर्सन, मिडिल मैन है. वो मैन्युफैक्चरर से सामान लेती है और हमारे तक पहुंचाती है. सपोज ये Amazon की हम बात करें, अगर ये दोनों पार्टी आपस में बिजनेस कर रही है तो इट इज B2B कॉमर्स, बिकॉज बोथ आर बिजनेस पार्टीज. जब हम Amazon से ले रहे हैं, this is B2C commerce, because here Amazon is a business and we are customers. Second is C2C, both the parties are customers, दोनों ही customers हैं आपस में. ये कोई अगर बताना चाहे तो कौन सी एक्टिविटी ऐसी है या कौन सी ऐसी कोई एग्जांपल दे सकता है कुछ C2C कॉमर्स की, when both the parties are customers? वन रेस हैंड करना बेटा, हैंड रेस ही करना, आंसर मत देना प्लीज. अदर्स आल्सो. 2 गुड, 3 इसकी एग्जांपल देनी है आपने. 4 वेरी गुड, 5 1 2 मोर. एक तो बच्चे और बता दें बस मेरे को हैंड रेस करके इसकी एग्जांपल. 6 गुड. हिमानी. Sir, OLX. OLX. वेरी गुड. When we purchase second hand goods, करते हैं ना परचेज हम, है ना. बड़ा कॉमन रहा, पीछे तो काफी कॉमन रहा, पहले तो हर कोई डाल रहा था OLX पे, OLX से हम परचेज कर रहे हैं, OLX से हम सेल कर रहे हैं. बट सी, नो वन इज बिजनेसमैन बिटवीन दोस टू पार्टीज, नो वन इज बिजनेसमैन, बोथ आर कस्टमर. उसने तो कस्टमर, उसने एज अ कस्टमर चीज परचेज की थी और एज अ कस्टमर उसने नहीं लेनी है तो वो सेल कर रहा है, कैसे निकल जाएगी. ठीक है. OLX when both the एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल से याद रखना चाहिए. OLX की जैसे एक और होती थी ऐप, में तो नाम याद नहीं गया उसका. सर क्विकर. कौन सी? क्विकर. क्विकर, यस, क्विकर.com, बिल्कुल क्विकर होती है, QUICKR, ER. सर और भी बहुत सारी हैं. और भी बहुत सारी हैं, मेरे को 2 ही पता थी, और इसमें से एक बोली हुई थी मेरे को, OLX याद थी. द ब्रांड, ये किसे बोलते हैं, ब्रांड, है ना. जब एक चीज आपके दिमाग में ही बैठ जाए, जब भी आपको वो चीज याद आए तो वही चीज याद है तो ब्रांड होता है. अगर हम शूज की बात करें तो नाइकी एक ब्रांड बन जाता है, हम पहले नाइकी याद आता है. ऐसे अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में जो भी हम ब्रांड सपोज पहन रहे हैं वो पहले याद आता है, वो ब्रांड वैल्यू होती है जो माइंड में होती है. ये हम पढ़ेंगे 12th में जाके इसको पढ़ेंगे. ठीक. एक है, नेक्स्ट है B2E. हियर E इज एम्प्लॉय. E इज एम्प्लॉय हियर मींस व्हेन बिजनेस जो कोई एक्टिविटी कर रहा है एम्प्लॉय के साथ, वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है. लाइक सम बिजनेसेस दे ट्रांसफर देयर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज इलेक्ट्रॉनिकली, है ना. तो वो कैश में देते हैं, ना ही उनको चेक देते हैं, ना ही उनको ड्राफ्ट देते हैं. वो बैंक में पैसे उनके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देते हैं. वो लेटर देते हैं बैंक में कि ये फलाने फलाने अकाउंट नंबर में इतने इतने पैसे डाल दीजिए. इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा होता है. दैट इज द B2E कॉमर्स. अदरवाइज भी अगर कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह बिजनेस साइड से एम्प्लॉइज को आ रही है
कोई गाइडलाइंस ऐसी आ रही है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली आ रही है तो दैट इज आल्सो B2E, ठीक है। when two parties, one is business and other is employee. And last is intra B. Intra B means within the business. इंट्रा बिजनेस, जब बिजनेस में एक जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ऑनलाइन जो है वो डीलिंग कर रहा है। सपोज देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन बिजनेस। अगर बड़े बिजनेस की हम बात करें, एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, एक होता है सेल डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे ही है फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब सेल डिपार्टमेंट ने ऑर्डर करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि इतना ऑर्डर आया है और हमें ना गुड्स जो है वो चाहिए, आप गुड्स बना दीजिए। अगर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑनलाइन जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जा रही हैं, इट इज इंट्रा बी। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सामान बनाना हो तो परचेज डिपार्टमेंट को ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दे कि हमने इतना सामान बनाना है, हम इसके लिए ये चीज चाहिए, आप परचेज कर लीजिए, है ना, दैट इज इंट्रा बी। परचेज डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोले कि हमने इतना सामान जो है बनाना है, इसके लिए पैसा अरेंज कर लीजिए। अगर ये बातें जो है, अगर ये डीलिंग जो इंस्ट्रक्शन जो है या रिक्वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, दैट इज द इंट्रा बी। बिजनेस सेम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस जो है वो इंट्रा बी आपस में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फाइन। सो ये 5 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज आर देयर।